Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video, I am going to restart with 11th class. Yes, so my 11th class students are waiting for my videos and here I am for you all with 11th class second unit. In my previous videos of 11th class which we have already done, that the link, the playlist I will share today in my video so that you will get to know that we have done already at unit 1 in which we have discussed the economy, the types of economy and all variety. Along with that, we have also discussed PPC, which board has said that this year we are not going to have PPC, production possibility curve, in your annual examination. But the point is, without understanding production possibility curve, it is impossible for us to understand economic production, right? So I must suggest you that you should go with that videos also so that you will get to know about production possibility curve as well. It will clear your all aspect related to economic types, different market economy, different types of economy and the subject matter. So that unit we have already done. It comprising of 4 marks only. The syllabus pattern and everything I have discussed in my previous video. In today's video I am going to start with the second unit of microeconomics. So here we'll begin. Before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we'll start. In today's video we are going to discuss unit 2. Chapter unit is consumers equilibrium for class 11. Before we start with consumers equilibrium, because in whole unit we will discuss utility approach, we'll also discuss indifference curve approach, we'll discuss theory of demand as well as elasticity of demand. These all are very interesting chapter. You will definitely involve into it and you will enjoy it because it is reality, it is applicable for the consumer and it's variant also. It's applied person to person, it applied consumer to consumer in different situation, in different scenario. So here we'll start. Before we start with striking consumer equilibrium, we must know about who is consumer. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है और हम उसको क्यों यहाँ पर लेकर आए हैं to get his equilibrium. So here we need to understand who is consumer. A consumer is an economic agent. सबसे पहले हमें समझना है कि जो consumer है that is an economic agent. Why? Because all economic activity, how many activities we have? We have already discussed consumption, production and distribution. So who consume? Consumer, right? So consumer is an economic agent. Second feature of consumer here is he is the person who is going to buy goods and services, because in economy whatever is produced is actually consumed by consumer and he is the only responsible man or woman who is going to buy the goods and services which are produced in the economy. Right here, the third main objective behind consumer behavior is its objective is to maximize satisfaction from his expenditure. So what consumer always try to do? He always try to strike his equilibrium. He is always try to have its satisfaction when he is measuring it with its expenditure. कैसे? अगर आप बाजार में जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो आप क्या कहते हो? 10 रुपए का है, बहुत बढ़िया है. 100 रुपए में बस ये मिल गया, बहुत अच्छा है. यार 50 रुपए में ये दे रहे हो, ये तो महंगा लग रहा है. 1000 रुपए का है, ये तो बहुत ही महंगा है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? What you are going to expend on such commodity, are you getting the satisfaction or not? So this all statement is related to your deriving satisfaction with your income. Point indicates the objective behind all such expenditure which is made by consumer is just to get his maximum satisfaction. अब वो कैसे होता है? Like you all go market, हम सब मार्केट जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 50 रुपए में मिल रहा है, महंगा तो नहीं है, ये 100 रुपए में मिल रहा है, सही मिल रहा है, और 1000 रुपए का तो ओ इट्स सो एक्सपेंसिव. तो ये सारे स्टेटमेंट हैं क्या? ये हमें बताते हैं कि हम अपनी मनी को कितना यूज कर सकते हैं और उससे जो खरीदी है हमने चीज, दैट वस्तु, दैट गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इक्वली सेटिस्फाइंग आवर रिक्वायरमेंट. कि अगर मैं 1000 रुपए खर्च करके आ रही हूँ मार्केट में, तो क्या जो गुड मैं लाई हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है?
समटाइम वी बिहेव लाइक दिस, हम लेके आते हैं यार लगता है बहुत महंगा लिया है, थोड़ी सी बार्गेनिंग और कर लेते तो मे बी हम और कम में ला सकते थे। तो दैट सेटिस्फैक्शन, ये जो ब्रेन में आ रहा है ना, हमारे मन में जो फीलिंग आती है कि यार इतना हो सकता था पर हुआ नहीं, कि यार इतना हम कर सकते थे, हम और कम करा सकते थे पर कराया नहीं, अभी भी महंगा ही लिया है। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली हाउ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, and this satisfaction which he is actually comparing with his money expenditure. So it's all short expenditure in terms of money expenditure, satisfaction in terms of money expenditure, sorry here slip of tongue. So this is all what we are discussing here in terms of consumer, consider as consumers behavior. हम मार्केट जाते हैं, हम इकोनॉमिक एजेंट हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो खर्च करके आए हैं उससे मिलने वाली गुड्स एंड सर्विसेज से हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये सारा जो हमारा बिहेवियर है दैट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसी बिहेवियर को हम दो एनालिसिस के थ्रू मेजर करने वाले हैं इन दिस यूनिट। सो दिस यूनिट विल हाईलाइट द कंज्यूमर बिहेवियर इन टू डिफरेंट अप्रोचेस। First is utility analysis, second is indifference curve analysis. Utility is also called cardinal approach because here we'll measure consumer satisfaction in terms of numbers. Like we purchase any goods and services, like we are purchasing wheat, so it will be termed as in kg. When we are purchasing liquid, it is termed as liter. तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इनका मेजरमेंट है। तो इसी तरह से जो हमारा बिहेवियर है जिसको हम यूटिलिटी के थ्रू पढ़ेंगे उसका मेजरमेंट कार्डिनल वे में है, इसलिए इसको हमने दूसरा नाम दिया है कार्डिनल अप्रोच। Second is indifference curve approach. So indifference curve approach here says that consumer is indifferent, means confused, and then he has to make a rank. He has to decide the priority on which he wants to expand, and there he need to make balance. So ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डर। So this is how we go with consumer behavior in two types of analysis. You just write down the whole, then we'll start with utility approach. Alright, if you have not written, you just pause the video and then write it down. So here we'll start with utility as approach. So first of all, we are going to decide the utility approach. We need to understand the term utility. What is utility? Utility simply says usefulness. यूटिलिटी का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है जिसको हम बोलते हैं यूजफुलनेस। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग आवर मनी, व्हेनेवर वी आर यूजिंग आवर गुड्स, we have to be satisfied in terms of its usefulness. तो usefulness क्या है, applicability क्या है, utility क्या है, that we are going to discuss in this approach. So first of all we need to understand its meaning. So first is want satisfying power of goods. Want satisfying power of goods means here it is written as COM, means commodity. Commodity is also called goods. So want satisfying power मीन्स जब हम कोई गुड खरीद रहे हैं तो उससे मिलने वाली हमारी इच्छा और उस पे हुए खर्च से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो इसको हमने एक अच्छी सी डेफिनेशन दे दी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब कैसे इसको समझना है, सपोज आप मार्केट गए, आपने शोरूम में एक ड्रेस देखी, उस पर प्राइस टैग देखा, आप खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस आपको पसंद आई, प्राइस टैग आपके बजट में आई, एंड यू वेंट इनसाइड एंड यू परचेज इट, एंड दैट इज हाउ यू सेटिस्फाइड। सो दैट प्रोडक्ट, दैट कमोडिटी हैज गिवन यू द वांट सेटिस्फाइंग पावर. So that is called utility. Second point here, it is measured in terms of cardinal numbers. It is numbers. So it is measured in terms of cardinal number, that is 1, 2, 3, 4, 5. It means whenever we are, like मैंने अभी बताया आपको, अगर हम कुछ भी solid liquid खरीद रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मेजरमेंट होता है ना। अब हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो हम रुपीज में मेजर करते हैं, बट क्योंकि हमें यहाँ पे डील करना है एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ, ये जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज इनसाइड योर हार्ट, हमारे अंदर है, ये हमारे ब्रेन में है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, बट इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। फॉर दिस रीजन एल्फ्रेड मार्शल, जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट रहे हैं इस फील्ड में,
उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। कौन सा कंसेप्ट दिया? यूटिलिटी का। बहुत ज्यादा ये भरा हुआ हो गया है, आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं। एल्फ्रेड मार्शल, he was a great economist who has introduced this concept of utility and he has introduced the concept of cardinal approach। इन्होंने इसको कार्डिनल दिया क्योंकि ये कहने लगे कि ऐसे तो हम साइकोलॉजिकली किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते। फॉर दिस रीजन अगर हम कंज्यूमर को एक किसी फाउंडेशन में बांध दें और उसको फिर कहें कि एक्सपेरिमेंट करें उसके ऊपर, तो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में जो चेंज आएगा उसको हम करेंगे नंबरिंग, राइट? तो जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल हर स्टेज पे बदलेगा उसको हम नंबर डालते जाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर एंड 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज हाउ वी मेजर यूटिलिटी। नेक्स्ट इज हेयर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट टर्म्ड एज यूटिलिटी। जब इसको हम एग्जैक्ट यूनिट में टर्म कर देते हैं कि ये 4 कमोडिटी लेने से या 4 गुड्स लेने से या 4 टाइम्स इस काम को करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब और नहीं करूंगा। व्हाट डज इट मीन? अगर आपको कह दिया जाए बैठो यहां बैठ के 4 रोटियां एक साथ खाओ, यू स्टार्ट ईटिंग योर चपातीस, यू ईट 1 2 3 4 पे आके आपने कह दी बस अब और नहीं। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो हेयर वी एक्सप्रेस एक्सैक्ट यूनिट टर्म्ड एज यूटिलिटी, जो 4th पे आके रुक गई। नेक्स्ट, मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज यूटिल्स। अभी मैंने बताया ना, जैसे हम वीट को कर रहे हैं केजी में, हम लिक्विड को कर रहे हैं लीटर में, इसी तरह से हम अपने सेटिस्फैक्शन की रैंकिंग सेटिस्फैक्शन की नंबरिंग करेंगे यूटिल्स में, यानी 1 यूटिल 2 यूटिल 3 यूटिल 4 यूटिल। तो जितनी सेटिस्फैक्शन आएगा, जैसे जैसे हम स्टेजेस क्रॉस करेंगे, हर स्टेज का सेटिस्फैक्शन लेवल हम मेजर करेंगे यूटिल्स में, like kg, like liter, like gram, like kilogram, like ounce and all। जैसे हम मेजरमेंट करते हैं उसी तरह से हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को मेजर करके लिखेंगे यूटिल्स। सो द टर्म विच इज यूज फॉर मेजरिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये आता है। नेक्स्ट, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मनी। समटाइम वी ऑल्सो एक्सप्रेस आवर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे? ये 100 रुपए का बहुत बढ़िया मिल गया, 1000 रुपए का बहुत महंगा है। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को मनी में भी मेजर करते हैं। यानी यूटिल्स में तो कर ही रहे हैं, बट कभी कभी हम अपने सेटिस्फेक्शन को मनी में भी करते हैं। ये तो इकोनॉमिक टर्म में हम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मार्शल जी ने कह दिया भी करना है तो करना है। अब उन्होंने कार्डिनल अप्रोच इतनी मेहनत से इंट्रोड्यूस किया तो वी नीड टू फॉलो। तो यूटिल्स में तो हमने कर दिया, बट in reality we measure our satisfaction in terms of money, so here we'll also use that in terms of money। so this is all about utility। now अब इसके फीचर्स क्या हैं, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कितनी तरह से वेरिएंट है, ये कितनी तरह से यूज होता है। सबसे पहला एक सब्जेक्टिव फीचर है। सब्जेक्टिव मीन्स ये हर पर्सन का एक अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, इंडिविजुअल फिनोमिनल है, जिसमें वो वेरी करता है, जिसमें वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से डील करता है। वी नो कंज्यूमर इज अ ग्रेट हीरो ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर इज ऑलवेज प्ले लाइक एनीथिंग। कंज्यूमर इज ड्रामेटिक। वो हमेशा सिचुएशन में अपना एक नया रंग दिखाता है, राइट? तो इट इज सब्जेक्टिव और हर पर्सन का एक अलग सिनेरियो होता है। नेक्स्ट इज इट इज वेरिएबल। डेफिनेटली if we are here in Jodhpur we think differently, if we are in Jaipur we'll think differently, और अगर हम दिल्ली गए या आउट ऑफ इंडिया गए तो हमारे जो डिमांड, हमारे जो सेटिस्फेक्शन है हर लेवल के साथ चेंज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। हर गुड्स की, हर प्रोडक्ट की, हर सर्विसेज की यूजफुलनेस अलग अलग होती है। अगर मैं कहूं वीट की जगह मैं राइस कंटिन्यू खाऊं तो राइस से मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आई ऑल्सो नीड वीट, राइट? राइस वीट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। लिक्विड यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ जूसेस पी रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं तो जूस कैन नॉट बी अ ग्रेट सप्लीमेंट और द रिप्लेसमेंट ऑफ योर मेन मील। तो हर चीज की एक अपनी अपनी जरूरत होती है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। हर एक की अपनी डिफरेंसेस हैं, हर एक के अपने यूजफुलनेस हैं, इसलिए अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट इज हैज नो मोरल, लीगल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लाइक आई टोल्ड, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज डिफरेंट, कंज्यूमर इज द हीरो ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर इज टोटली ड्रामेटिक। तो ये
किसी भी तरह से कहीं लॉ में नहीं है कि कंज्यूमर ऐसा ही करेगा तब ये होगा या कंज्यूमर ऐसा ही करेगा तब ये होगा। वाइल वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट वो हमें किसी सर्कमस्टेंसेस के बियॉन्ड सिचुएशन होने पर अलाउ होती है यूज करना। बट द पॉइंट इज, क्योंकि कंज्यूमर का कोई बिहेवियर एक फिक्स नहीं होता, इसलिए ना तो इसका कोई मोरल लीगल इम्प्लीकेशन है, ना कोई लीगल इम्प्लीकेशन है, और ना ही कोई एथिकल इम्प्लीकेशन है। इट इज जस्ट नॉर्मल द बिहेवियर इन आवर सराउंडिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the types and how it is calculated. So you just write down all the features, then we'll move to that. So now we are going to discuss the concepts of utility and the types of utility. So here we have concepts of utility and the types of utility. It has two types basically, total utility and marginal utility. Now what are these? So that we need to discuss. Total utility. It is the sum total of utility derived from the consumption of all units of goods. It means जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करते जाते हैं 1 2 3 4 5 6, हर गुड्स से जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका टोटल, मैंने कहा ना अभी मार्शल ने इसको नंबरिंग दे दी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। तो उस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन को हम मेजर कैसे करें, इसके लिए हमने एक नंबरिंग टास्क करा। नंबर के थ्रू जितना भी हम मेजर कर पाए उसको हमने टोटल कर दिया, एंड दैट कंसेप्ट इज कंसिडर्ड एज टोटल यूटिलिटी। वापस समझ लो, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स। अब इस बात को मैं टेबल के थ्रू साथ साथ समझाती चलती हूँ। अब देखो, आप कोई गुड खरीदो, सपोज आप आइसक्रीम खाने गए, राइट? अभी गर्मियां भी हैं, जरूरत भी है थोड़ा सा ठंडा बनने की, लेकिन हम बाहर जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो चलो घर पे बना लेते हैं, तो घर पे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो जो गुड्स हैं हम जो कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यूनिट, पहली गुड से सेटिस्फेक्शन हमें 20 मिला, दूसरी बार आइसक्रीम खाने से टोटल कितना हो गया 35। इसका मतलब जब सेकेंड यूनिट ली तो आपको 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ था, जिसको आपने इसमें ऐड कर दिया 20 में, तो आपको ये कितना मिल गया 35। फिर जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट होती है एडिशनल, एक और, बट इन टोटल आपने कितनी कंज्यूम कर ली 3 यूनिट, तो उन 3 यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हो गया 40, जबकि अकेले सिर्फ एक और यूनिट बढ़ाने से आपका सेटिस्फेक्शन सिर्फ 10 इंक्रीज हुआ, बट इन टोटल 40 हो गया। तो इस तरह से ये जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, ये हर लेवल पर आप जैसे जैसे कंज्यूम करते जा रहे हो, उस एक्स्ट्रा यूनिट को जैसे आप ऐड कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो आ रहा है उसको भी टोटल करता जाता है, and that is called total utility. It is psychological satisfaction, definitely I told you, ये सब psychological satisfaction है, इसको हमने numbering दे दी है so that it can be understood easily, right? So how it is measured, how it is calculated? Total utility means MU1 plus MU2 plus MU3 plus so on MUN, यानी जब तक MU निकलते रहेंगे हम उसको टोटल करते रहेंगे, और MU क्या है, मार्जिनल। अब मार्जिनल क्या होता है वो समझेंगे हम। So total utility can also be कैलकुलेटेड एज सिग्मा MU। अब देखो, सिंपल सा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया और फॉर्मूला भी बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब इकोनॉमिक्स लगेगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट है कुछ नहीं, जो हमारा अंदर भरा हुआ था उसको हमने नंबर में ट्रांसफॉर्म किया और फिर उसी को टोटल कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया और हो गया। दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स इज, दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू। तो हम अपने ही बिहेवियर को नंबरिंग में डाल रहे हैं, अपने बिहेवियर को साइंटिफिक बना रहे हैं, मैथमेटिकल बना रहे हैं और समझ रहे हैं। दिस इज हाउ वी डील विद। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, समझो टर्म को। ये क्या था, टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल कंजम्पशन। अब ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल, एक्स्ट्रा एडिशनल। ये दो बातों पे ध्यान रखो। हम जो गुड ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं कंटिन्यूस, उसका एडिशनल कंजम्पशन करने से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, राइट? अब इसको चलते हैं वापस हम टेबल फॉर्म में समझने के लिए। कैसे हुआ, आपने 1 यूनिट ली, टोटल सेटिस्फेक्शन 20, मार्जिनल भी 20 क्योंकि पहली थी, राइट? अब सपोज मैं आपको बिठा दूं, कहूं से समोसे आए, सूर्य के मौसम अच्छा है, खाना है, ठीक है? पहला समोसा खाया, आपको 20 नंबर का सेटिस्फेक्शन, 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ से मिला। फिर एक और खाया,
पहला समोसा, भूख भी थी और पसंद है, यूज इट, कंज्यूम्ड इट, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर जैसे सेकंड खाया, अब आप खुद अज्यूम करिए द सेटिस्फेक्शन विच वॉज डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ samosa, the same you have with the additional unit of the same samosa, it will somewhere sacrificed or not? Yes, so it will be declined. तो क्या हुआ, जैसे ही हम 1 से 2, अब टोटल में तो क्या हो गया कि मैंने 2 समोसे खाए, राइट? यानी 1 से 2, एक और एक्स्ट्रा खाने पर, एक और एक्स्ट्रा लेने पर, उसमें जो आपने एडिशन किया वो कितने का किया? 15 का, राइट? टोटल 35 हो गया आपका टोटल यूटिलिटी इन ऑल शॉर्ट, 2 समोसों से 35 हो गया। बट एक से दूसरे पर आने पर आपका सेटिस्फेक्शन इन मार्जिनल एडिशनल कितना मिला? एडिशनल यूनिट लेने से कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला? 15 का। तो ये 15 हमने इसमें एड ऑन कर दिया। फिर मैं कहूं अब तीसरा भी खाना है, तो आपने तीसरा खाया, इट मीन्स इन टोटल आपने 3 खाया, बट 1 more was added। तो जैसी एक और एडिशनल आपने यूनिट कंज्यूम करी, 2 से 3 पर आए, आपका सेटिस्फेक्शन कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ? कितनी यूटिल्स आई एक्स्ट्रा? 10। और वो जब हमने इसको इसमें मिला दी तो 45 हो गई और एक्स्ट्रा 10 रही, राइट? इन द सेम वे इट विल गोज ऑन। नाउ यू कैन सी दिस इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। इसको हम एक और तरीके से डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी में होने वाले चेंज को हम क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो कितना सिंपल हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा यूनिट डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एडिशनल जो हमने कंज्यूम किया, ठीक है, और दूसरा चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब इसको भी हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया, मैथमेटिकल बना दिया। तो कैसे हो गया? MU इक्वल्स टू MUN means number of goods which we are consuming equals to 10n TUN minus TUN minus 1, or it can also be calculated as delta, this symbol is delta TU upon delta Q यानी यूनिट। अब इस अगर डायग्राम में मैं देखूं, इस टेबल में मैं इसको समझाऊं तो बहुत इजी है इसको समझना। देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? MU, सारे MU को प्लस करते जाओ। अब इसका मतलब है कि समझना में, अगर मैं थर्ड लेवल ऑफ TU कैलकुलेट कर रही हूं तो मुझे क्या करना है कि थर्ड लेवल तक जितने भी MU हैं उनको टोटल कर दूं, राइट? तो पहला MU क्या है? 20, दूसरा MU क्या है? 15, तीसरा MU क्या है? 10। सो थर्ड लेवल ऑफ TU इंडिकेट्स MU1, MU2, MU3। थर्ड लेवल तक आने के लिए, यानी थर्ड लेवल तक आने के लिए, इस लेवल तक आने के लिए मैंने इन तीनों को प्लस करा तो मुझे क्या मिला? 45. Now you can see the total utility at third level is 45. Are you getting it? Same, अगर आप 6th यूनिट पे जा रहे हो टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तो क्या होगा? 20 प्लस 15 प्लस MU1, MU2, MU3, MU4, MU5 एंड MU6। तो आपने ये सारे एड ऑन किए, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर ये एडिशन हुआ, आप पूरा सब टोटल कर लो, वापस ये कट हो गए, माइनस प्लस कट हो गए, टोटल करके निकल गया 45। 6 लेवल पे कितना है? 45। तो टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हुई इस तरीके से। अब अगर इसी चीज को मैं मार्जिनल यूटिलिटी में लेकर जाऊं, मार्जिनल क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट। तो अब मुझे मार्जिनल करना है, तो मार्जिनल का फॉर्मूला क्या है? सपोज मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी एट फोर्थ लेवल MU, तो क्या करूंगी मैं? फोर्थ लेवल पर यानी TUN, क्या है फॉर्मूला? TUN। फोर्थ लेवल पे जो TUN है दैट इज 50, करेक्ट? फिर कह रहा है TUN माइनस 1 यानी N के ऊपर वाला। N माइनस 1 क्या कह रहा है? कि N के ऊपर वाला, तो N मैंने क्या लिया? 50। अब 50 के ऊपर वाला क्या है? 45। तो ये मैंने ले लिया, रिजल्ट क्या है? 5। नाउ यू कैन सी 5 इज हियर, right? So this is marginal utility. So I think now you have understood how we can calculate total utility from this figure and how we can calculate marginal utility using these formulas. अब ये फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो जब कंटिन्यूशन में नहीं होती है तब अप्लाई होता है। लाइक सपोज आपको कह दिया कि थर्ड यूनिट पर, जो थर्ड यूनिट है उस पे जो टोटल यूटिलिटी है वो है 45 एंड फर्स्ट यूनिट पे जो यूटिलिटी है वो है 20। सपोज ये कह दिया, इस एग्जाम्पल को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे इसको, नहीं तो ये समझ के बाहर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डन। अब हमें इस पे कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी, तो कैसे करें? डेल्टा
TU अपॉन डेल्टा Q। तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हुआ 30 और टोटल यूनिट में 2, तो कितना आंसर आया 15। सो हियर इट विल बी कंसिडर एज MUN। थर्ड लेवल की MUN क्या कहलाएगी यहाँ पर 15। क्यों? क्योंकि हमने इसको डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q से मेजर किया है। सो दिस इज हाउ यूटिलिटी इज compared and how it is calculated and how it is relating to each other। देखो रिलेशन भी कितना अच्छा है। As soon as utility is increasing, marginal utility is decreasing. When total utility reaches to its maximum, marginal utility become 0। ये अभी और डिटेल में समझोगे जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझेंगे। When the total utility falls, marginal utility become negative। अब इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना देते हैं, फिर ये थोड़ा टॉपिक कवर अप हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट में मिलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी में, जो रिलेटेड करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको डायग्राम में आपको क्लियर बना दूं, इट विल बी इजी फॉर यू। कैसे बनना है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी विल ड्रॉ इट। मैं कंबाइंड एक डायग्राम बना रही हूं आपके लिए। कितनी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं टोटल 6। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या है ये यूनिट्स ऑफ गुड। अब यहाँ पे मैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक साथ बना रही हूँ। दिस इज y, दिस इज x। हमेशा याद रखो ये हमें करना है। मैक्सिमम लिमिट क्या गई है 50। सो दिस इज 50 40 30 20 एंड 10। ये हमने पैरामीटर्स बना लिए, हमेशा इक्वल रखना चाहिए स्केलिंग, ये याद रखना है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पे कितनी यूटिलिटी है 20, इट इज हियर। सेकेंड यूनिट पे कितनी यूटिलिटी है 35। सो 35 विल रीच आउट हियर, राइट। फिर फोर्थ लेवल पे कितनी है, सॉरी थर्ड लेवल पे 45। सो इट विल बी हियर, वी हैव मेजर्ड हियर। फोर्थ लेवल पे कितनी आ गई 50 मैक्सिमम। सो एट फोर्थ लेवल वी हैव हियर 50 पर आ गए हम, राइट। फोर्थ एंड 50। फिफ्थ पे भी 50 है तो बराबर ही रहेगा सेम, और सिक्स पे आके हम वापस 40 पर आ गए। तो इस तरह से हमारा कौन सा कर्व बन गया, ये टोटल यूटिलिटी का, ये बना टोटल यूटिलिटी का कर्व, राइट। अब हमें मार्जिनल का बनाना है। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फंडामेंटल लॉ है, नियम है, ये हमेशा फॉलो होती है। सो लेट्स फॉलो इट। कैसा हुआ, फर्स्ट पे कितना 20, सेकंड पे हो गया 15, थर्ड पे हो गया 10, फोर्थ पे हो गया, फोर्थ पे कितना गया 5, सॉरी, तो फोर्थ पे हम आ गए यहाँ। फिफ्थ पे हुआ 0, यहाँ आके माइनस पे चला गया, तो हम यहाँ पे -10 तक ले सकते हैं। इस तरह से माइनस पे आ गया। अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, आपका बिल्कुल फ्लैटर डाउनवर्ड स्लोप कर्व बनेगा MU का। तो यू कैन सी MU हैज बीन ड्रॉन लाइक दिस। थोड़ा सा इसको यहां से लेना, यस, तो ये आ गया हमारा MU विल बी ड्रॉन लाइक दिस। तो ये हमारा MU कर्व बन गया। तो नाउ यू कैन सी TU इज increasing, you can see that is increasing, then reaches to constant and start falling। तो जहां जहां चेंज आ रहा है that we will show, like कहां पर चेंज आया हमारा फिफ्थ यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट पे जाकर के MU क्या हो गया 0, MU क्या हो गया 0, राइट, एंड टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, इसके बाद जब ये फॉल हो रहा है, ये नेगेटिव में चला गया, ये नेगेटिव हो गया। कैसा हो गया, ये नेगेटिव, क्या हो गया MU, ये रिमेन पॉजिटिव है बट स्टार्ट फॉलिंग, क्लियर। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इस रिलेशनशिप को हम लिख भी सकते हैं। मैंने आपको जो जो बोला आप उसको लिख भी सकते हो, सिंपल सी बात है। विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट, टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग बट रिमेन पॉजिटिव। व्हेन वी एड मोर क्वांटिटी ऑफ आवर कंजम्पशन, total utility reaches to its maximum. At the same point, marginal utility become 0. Marginal utility become 0 and the curve will be negatively sloped. So marginal utility curve starts negatively sloped. Next, when we are consuming one more unit of a good, total utility starts falling and marginal utility become negative. तो इस तरह से इसको हमें एक्सप्लेन करना है और लिखना है। तो जो अभी मैंने बोला आप उसको पूरा लिख भी सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी और फ्रेम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन यूटिलिटी। So that is all for today's session. In next session we will do the topic of law of diminishing marginal utility and consumer equilibrium in one commodity case. So that's all. Bye-bye.